A friend indeed is a friend indeed. सच्चा दोस्त वो है जो मुश्किलात के वक्त में काम आए. Anusha and Zainab were a classmates and a good friends. Anusha और Zainab हम जमात और अच्छी दोस्त थीं. One day, एक दिन, Anusha fell ill and had to be hospitalized for a few days. अनुषा बीमार हो गई और कुछ दिन अस्पताल में दाखिल होना पड़ा. Zainab was worried about her friend and decided to visit her in hospital. Zainab को अपनी दोस्त की फिक्र थी और उसने अस्पताल में मिलने का फैसला किया. When Zainab arrived at the hospital, she found Anusha feeling lonely and sad. जब ज़ैनब अस्पताल पहुंची तो उसने अनुषा को अकेला और उदास महसूस किया. ज़ैनब stayed with Anusha for hours, telling her stories, playing games and making her laugh. ज़ैनब घंटों अनुषा के साथ रही, उसको कहानियाँ सुनाई, गेम्स खेली और उसको हंसाया. She even brought Anusha favorite food and drinks to cheer her up. यहाँ तक कि वो उसे खुश करने के लिए अनुषा के पसंदीदा खाने और पीने की चीजें ले गई. अनुषा was touched by Zainab's kindness and felt grateful to her friendship. अनुषा ज़ैनब की मेहरबानी से मुतासिर हुई और उसकी दोस्ती के लिए शुक्रगुजार हुई. She realized that Zainab was indeed a true friend in need. उससे महसूस हुआ ज़ैनब एक सच्ची मुश्किलात में काम आने वाली दोस्त है. When Anusha recovered and returned in school, जब अनुषा ठीक हो गई और स्कूल वापस आई, Zainab helped her catch up her studies and assignments. ज़ैनब ने उसकी पढ़ाई और असाइनमेंट्स में उसकी मदद की. She even offered to help Anusha with her homework and projects. यहाँ तक कि उसने अनुषा को अपने होमवर्क और प्रोजेक्ट में भी मदद करने की पेशकश भी की. Anusha was thankful to Zainab's support and friendship. अनुषा ज़ैनब की हिमायत और दोस्ती की शुक्रगुजार थी. She learned that true friends stand by your side in the times of the need, and she was lucky to have Zainab as a friend. उसे मालूम हुआ कि एक सच्चा दोस्त ज़रूरत के वक्त आपके साथ खड़ा होता है और वो खुशकिस्मत थी कि ज़ैनब उसकी दोस्त बनी. A kind bear. Once upon a time, एक दफ़ा का जिक्र है. In a sunny meadow, a little girl named Sohana wandered away from her family picnic spot. एक धूप वाले घास के मैदान में सुहाना नाम की एक छोटी सी लड़की अपने खानदान के पिकनिक स्पॉट से दूर भटक गई. She chased after a butterfly, laughing and giggling. उसने तितली का पीछा किया, हंसते मुस्कुराते, until she realized she was lost. जब तक उसे एहसास हुआ वो खो चुकी है. Just as Sohana began to cry, a big fluffy bear appeared from behind a tree.
जैसे ही सुहाना रोने लगी, एक दरख्त के पीछे से एक बड़ा फूला हुआ वृक्ष सामने आया। But this bear was not scary at all. मगर ये वृक्ष बिल्कुल भी खौफनाक नहीं था। He had a kind eyes and a warm smile. उसकी प्यारी आंखें और अच्छी सी मुस्कुराहट थी। He introduced himself as Bruno, the friendly bear. उसने अपना तारुफ ब्रोनो, दोस्ताना रिश के तौर पर कराया। Bruno asked Suhana what was wrong, and Suhana explained that she could not find her family. ब्रोनो ने सुहाना से पूछा क्या हुआ है, और सुहाना ने कहा कि वो अपने खानदान को नहीं ढूंढ पा रही। ब्रोनो offered help. सुहाना search for them. ब्रोनो ने कहा सुहाना से कि वो ढूंढने में मदद करेगा। Together they looked high and low, but the picnic spot was nowhere to be seen. वो साथ में ढूंढने लगे, पर उनको पिकनिक स्पॉट कहीं नहीं नजर आया। As the sun began to set, जैसे ही शाम होने लगी, Bruno knew Suhana needed to stay safe and warm. ब्रोनो जानता था कि सुहाना को महफूज और ठीक रहने की जरूरत है। He led Suhana to his cozy little cave filled with soft leaves and twinkling fireflies. वो सुहाना को इसके आरामदायक छोटे गार की तरफ ले गया जो पत्तों और चमकती हुई मक्खियों से भरी हुई थी। Bruno shared his honey and berries with Suhana, and they had a lovely dinner together. दोनों ने अपना शहद और बेरियां सुहाना के साथ बांटी और उन्होंने एक अच्छा रात का खाना खाया। The next morning, Bruno and Suhana continued their search. अगली सुबह ब्रोनो और सुहाना ने अपनी तलाश जारी रखी। Soon, जल्दी they heard a familiar voice calling Suhana's name. उन्होंने एक जानी पहचानी आवाज सुनी जो सुहाना का नाम ले रही थी। It was her family searching for her everywhere. ये उसका खानदान था, उसे हर जगह तलाश कर रहा था। Overjoyed to be reunited, Suhana hugged her family tight. दोबारा मिलने की खुशी में सुहाना ने अपने खानदान को जोर से गले लगाया। She thanked Bruno for taking care of her and promised to never wander off again. उसने उसके देखभाल करने पर ब्रोनो का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो दोबारा कभी नहीं भटकेगी। Bruno smiled, happy to have helped, and gave Suhana a big bear hug. ब्रोनो मुस्कुराया और मदद करने पर खुश हुआ और सुहाना को बड़े जोर से गले लगाया। From that day on, Suhana visited Bruno in his cave whenever she could, and they became
द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। उस दिन से सुहाना जब भी जा सकती थी तो ब्रूनो के घर में जाती थी और वो सबसे अच्छे दोस्त बन गए। ब्रूनो taught Suhana about the forest and secrets, and Suhana shared stories of her adventure. ब्रूनो ने सुहाना को जंगल और उसके रोजाना के बारे में सिखाया और सुहाना ने अपने एडवेंचर की कहानियाँ शेयर करती। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमेंट फॉर मोर।